हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतीक्षा फ्रॉम कैट सेंटर। तो आज मैं आई हूँ, आप इस वीडियो को देखने का मोटिव ये है कि आपको मार्केट स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज मैं यहाँ पे आई हूँ जॉब स्टडीज़ के रिगार्डिंग। मतलब आपके मार्केट में जॉब्स क्या है, सिविल इंजीनियर की जॉब क्या है मार्केट में, यह आज मैं आपको बताने वाली हूँ। Hello friends, welcome to the section of job study. This is Kaustubh Panse, product architect, design your own university. Let's first understand what is this section all about. Guys, when we conducted the survey for students, about 500 people have filled the survey. The major pain area of student that in which we need to support them according to the survey is interview preparation. So for that reason, to prepare you for the interview, we have created this section. Yeah, so let me allow me to explain it one by one. Now, why you have to see this video? Why you have to do take notes on this? See, the first reason is why you have to do it is you have to study the job market, because in a market, in a job kind of market, there are a lot of companies. So we want you to make very rational choices. So first study job market. Then once you understand market, then set your goal that I want to work in this profile. I want to set vision. I want to become like this person. I want to achieve this much salary. And then once you have set a goal, then you go for interview preparation. Begin your interview preparation. Right now, what is the whole agenda? See, my entire team is working with you. We are conducting interviews, and we have found out that students are not even aware of the name of the company. So imagine you want to work in a multinational company, but you don't know their names. So forget about their job profile, their clients, projects, everything. So here in every video, we will improve your knowledge just by 1%. We will improve your information by just 1%. Now you do it for 6 months. So from this knowledge, you will have the entire market study done. So you can make very good choices. Second reason is how do you prepare yourself for an interview? Because most of you are fearful about the interviews for a simple reason, you don't know what would be asked in that interview. So my recommendation is, whenever you are seeing this video, come with a diary, prepare notes. Yeah, you make a special job study diary. And finally, you explore the employer's website. That is very, very important. Because I have to prepare this video in a short while, I cannot explore it on my own. So you take your own time and explore it. The third point is what you have to do when you do this. This is a very simple process. First thing is you analyze your skills. I will be telling you what kind of skill requirement is there in the market. There are 3 kinds of skill requirement for any job profile. One is software skills, other is design skills, and third is soft skills. Yeah. So every company, depending upon, will have variable requirement in the 3 areas. So all these 3 areas, now analyze your skills. Yeah, how much designing skills you have, what kind of software skills you have, and what kind of soft skills you have. Yeah, and once you do this, just become aware of 2 things. What are these 2 things? These 2 things are, whenever you were seeing that video, were you having a sense of self-belief? Were you feeling confident in that area? Just be aware of that and note down those points. Now, you also see, fear is a very good indicator. Fear only means that you are not prepared in that area. So if they are asking, let's say for example this video, if this is asking you to have excellent spoken English skills and you feel fearful, अगर आपको डर लगा है तो इसका मतलब आप वहाँ पे प्रिपेयर्ड नहीं हो. तो ये जो फियर है उसके भी पॉइंट आप नोट डाउन करो. यहाँ पे टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, ये इसको मेंशन करो. अभी क्या करना है कि जिस पॉइंट पे आपको कॉन्फिडेंट फील हो रहा है उसको वैसे ही मत छोड़ो, वेरीफाई करो. देखो उस पर कोई असाइनमेंट सॉल्व करके, कैट सेंटर के ट्रेनर से जाके मिलो, पूछो कि सर ये मेरे स्किल्स बराबर है क्या. अपने लाइफ के ये पॉइंट देखो, है ना. अभी जहाँ पे आपको फियर महसूस हो रहा है, सिंपली आपको जाना है यूनिवर्सिटी में लॉगिन कीजिए. मैंने इस वीडियो में मेंशन किए हैं, उस सेक्शन में जाइए और खुद उसका प्रिपेयर कीजिए. या सो दैट इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट. अगर कोई सिविल इंजीनियर है, उसको जॉब चाहिए, तो पहले उसको उस जॉब के बारे में मतलब स्टडी करनी पड़ेगी कि क्या क्या जॉब अवेलेबल है सिविल इंजीनियर्स के लिए. उसके हिसाब से उसको गोल सेट करने पड़ेंगे, ठीक है. और फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो आप. अब मार्केट स्टडी कैसे करेंगे आपको देखना पड़ेगा उस वेबसाइट पे जाके कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है. मतलब अगर आपको कोई कंपनी मिलती है वेबसाइट पे, अगर आप चेक करते हो तो उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको क्या चाहिए कैंडिडेट में, उनको एम्प्लॉय में क्या चाहिए.
ठीक है, तो उनके उसके हिसाब से आप आपका गोल सेट कर सकते हो। अब गोल सेट करके सिर्फ गोल सेट करके कुछ नहीं होगा, उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। तो वो प्रिपरेशंस के स्किल्स आपके इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे आज मैं आई हूँ। अगले 10 मिनट तक अगर आप ये वीडियो देखते हो, तो अगर अगले 10 मिनट में आपको एक जॉब का बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कंपनी को एक्चुअली क्या चाहिए, ठीक है। फिर आपको अगर आप जॉब के बारे में पता करते हो कि कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉय में, तो उसके हिसाब से आप गोल सेट कर सकते हो। आप ये वीडियो देखते हो तो आप एक पेन और डायरी लेके बैठ सकते हो, जो मैं पॉइंट्स बताती हूँ उसको नोट डाउन कर सकते हो, जो आपको हेल्पफुल रहेगा आपके इंटरव्यू के लिए, ठीक है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आपको, मतलब कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आपको आपके स्किल्स इंप्रूव करने चाहिए। अब स्किल्स में क्या रहता है कि सिर्फ इंटरव्यू स्किल्स रहते हैं क्या, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स भी रहते हैं, आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज भी रहता है, साइट का नॉलेज भी होना चाहिए। अब कुछ कंपनी का अगर साइट पर आप काम करना नहीं चाहते तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर आना बहुत ज़रूरी है, आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर से सिविल के आप सीख सकते हो सॉफ्टवेयर इन आवर यूनिवर्सिटी पोर्टल ऑफ कैड सेंटर, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ जॉब स्टडी के बारे में। जॉब स्टडी है क्या, एक मैं वैकेंसी लेके आई हूँ जो है प्राइमावर्स कंपनी से। एक ओपनिंग है एज अ ट्रेनी डिजाइन इंजीनियर। अब ट्रेनी डिजाइन इंजीनियर, नाम में डिजाइन इंजीनियर, तो डिजाइन इंजीनियर का जॉब रोल होता क्या है, वो क्या करते हैं एज अ डिजाइन इंजीनियर, आपका वर्क क्या रहता है। ये डिजाइन इंजीनियर जो है उनका वर्क होता है सॉफ्टवेयर के ऊपर। मतलब अगर आप किसी सॉफ्टवेयर में परफेक्ट हो, किसी सॉफ्टवेयर में प्रोफिशिएंट हो, तो एज अ जॉब डिजाइन इंजीनियर आप किसी भी कंपनी में प्लेस हो सकते हो, ठीक है। तो एज अ ट्रेनी डिजाइन इंजीनियर करके एक वैकेंसी आई है जो है प्राइमावर्स से। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी की वेबसाइट मैंने दी हुई है प्राइमावर्स कंपनी की, आप लोगो भी देख सकते हो। तो हमारे यहाँ पे प्राइमावर्स कंपनी से एक ट्रेनी डिजाइन इंजीनियर की वैकेंसी आई हुई है। अब प्राइमावर्स कंपनी है क्या, एक प्राइमावर्स कंपनी जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है, वो उनका स्पेशलाइजेशन है कैड इंजीनियर्स में। अब कैड इंजीनियर्स क्या है, जो डिजाइन इंजीनियर्स है, ट्रेनी डिजाइन इंजीनियर्स है, उनको कैड इंजीनियर्स भी बुलाते हैं। जब कैड इंजीनियर्स सिर्फ उनका काम सिर्फ ऑटोकैड पे नहीं रहता, उनका रेविट में भी काम रहता है, उनका स्केचअप में भी काम रहता है। डिजाइन इंजीनियर्स का जो है वो कौन से भी सॉफ्टवेयर पे वो काम कर सकते हो, ठीक है। अब प्राइमावर्स जो है उनको एक स्किल टीम चाहिए कैड इंजीनियर्स की। अब कैड इंजीनियर्स उनके सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट भी अगले नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चलेगा कि उनके सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। और प्राइमावर्स जो है उनके सर्विसेज बहुत अच्छे सर्विसेज है, वो लैंड सर्विसेज और सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज भी, मैकेनिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो, फिर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करती है और बीम सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। बीम मतलब बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करती है। प्लस वो HVAC डिजाइन एंड मॉडलिंग भी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। अब HVAC डिजाइन क्या रहता है, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग डिजाइन। अब उसमें क्या रहता है, उनके लिए एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट रहती है रेविट MEP करके। रेविट MEP मतलब रेविट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग डिजाइन। तो उस सॉफ्टवेयर में क्या रहता है कि वो आप जो भी इलेक्ट्रिक लेआउट से, प्लम्बिंग लेआउट से या फिर AC डक्ट जो है उनकी डिजाइन आप रेविट सॉफ्टवेयर में दिखा सकते हो। तो उनका जो HVAC डिजाइन करके जो सेक्शन है, मतलब HVAC सर्विसेज जो है उनके लिए रेविट MEP आना बहुत जरूरी है। Revit Architecture. Our programs on Revit Architecture covers the basics from schematic design through to construction documentation. It teaches all about creating a basic floor plan, 3D views, developing the building model, working with drawings and printing sheets, and creating renderings. The course covers all key features of Revit Architecture such as conceptual design, 2D drawings, 3D modeling, quantity takeoff, bidirectional associativity, parametric components, energy analysis. We offer Revit Architecture in certificate, diploma, professional, and master diploma courses. Enroll and understand the concepts of building information modeling and the tools for parametric building design.
उनकी यहाँ पे मैंने एक मेल स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, तो उनका मेल आया था, उनका मैसेज आया था कि उनको स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है जिनका रेविट MEP जिनमें वो रेविट और ऑटोकैड के स्टूडेंट्स को हायर करना चाहते थे। उनकी इंटरव्यू प्रोसेस भी दी हुई है कि पहले एक कैट टेस्ट होगी, फिर टेक्निकल राउंड होगा और फिर HR राउंड होगा। अब कैट टेस्ट में आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आना बहुत ज़रूरी है। उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? अब एक्सपेक्टेशन बहुत ज़रूरी रहते हैं, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, वो हमें आता है या नहीं, हम उसमें एक्सीलेंट है या नहीं, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। अब इनके एक्सपेक्टेशंस क्या है? उन्हें गुड कैंडिडेट चाहिए ऑटोकैड और रेविट आर्किटेक्चर्स में, ठीक है। तो आपको ऑटोकैड का नॉलेज होना चाहिए, ऑटोकैड में आप ड्राइंग बनाना आना चाहिए, और रेविट आर्किटेक्चर्स में भी। तो उसके लिए हमारे पास एक यूनिवर्सिटी पोर्टल में आप स्पेस डिजाइन में वो सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। अब जॉब प्रिपरेशन यहाँ पे दिखाया गया है। जॉब प्रिपरेशन मतलब क्या, कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, ऑटोकैड और रेविट आर्किटेक्चर, और हम क्या दे रहे हैं आपको, एक यूनिवर्सिटी पोर्टल जो है हमारा, वहाँ पे आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का इन डिटेल आप स्टडी कर सकते हो। मॉडलिंग फंडामेंटल्स में स्पेस डिजाइन करके एक ऑप्शन है, आप वहाँ पे जाके ऑटोकैड इन डिटेल सीख सकते हो। प्लस रेविट आर्किटेक्चर भी मॉडलिंग फंडामेंटल्स में स्पेस डिजाइन में स्पेस डिजाइन करके एक सेक्शन है, वहाँ पे आप रेविट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर भी सीख सकते हो। इन डिटेल बेसिक से आप पूरा सीख सकते हो। अब ये जो कंपनी है उन्हें ऑटोकैड और रेविट आर्किटेक्चर चाहिए, तो आप उसमें प्रिपेयर हो या नहीं, ये आपको देखना चाहिए पहले। अगर ऑटोकैड में सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज है तो वो तो सफिशिएंट नहीं है, उसमें आप प्रोफिशिएंट चाहिए, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है कि एक्सीलेंट इन रेविट आर्किटेक्चर एंड ऑटोकैड। तो आप उसमें एक्सीलेंट हो या नहीं, आप ये चेक करो पहले कि आपको वो आता है या नहीं। अगर नहीं आता तो पहले आप वो सीख लो। वो यूनिवर्सिटी पोर्टल में यहाँ पे मैंने बताया है कि मॉडलिंग फंडामेंटल्स में स्पेस डिजाइन में आपको वो मिलेगा, वो पूरा कोर्स ऑटोकैड का और रेविट आर्किटेक्चर का, रेविट स्ट्रक्चर का, रेविट MEP का, सारे कोर्स जो है वो मॉडलिंग फंडामेंटल्स में आपको मिल जाएंगे। और कम्युनिकेशन स्किल भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो कंपनी है उसके क्लाइंट्स जो है वो आउट ऑफ इंडिया है सारे, तो आपको आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आप क्लाइंट के साथ डील करते हो, क्लाइंट के साथ बात करते हो, तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, या फिर इंटरव्यू प्रिपरेटरी स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपको इंटरव्यू देना है तो अगर आपके अंदर फियर है उस बात का कि मैं कैसे इंटरव्यू दे सकता हूँ या कैसे इंटरव्यू दूंगी मैं, तो उसके लिए भी आपका जो फियर है वो ओवरकम करने के लिए भी हमारे पास कुछ वीडियोस है, वो भी आप देख सकते हो वहाँ पे इन द स्किल अप सेक्शन। तो स्किल अप सेक्शन में इंटरव्यू प्रिपरेटरी स्किल्स और स्पोकन इंग्लिश के भी स्टेप्स है, वो दोनों वीडियो आप देख सकते हो, जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और इंटरव्यू में सिर्फ कम्युनिकेशन और प्रिपरेटरी स्किल बाकी भी है तो सब आता ही होगा, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज भी बहुत जरूरी है। तो सॉफ्टवेयर जो है वो सब आपको यूनिवर्सिटी पोर्टल में आपको मिलेंगे। यहाँ पे मैंने एक यूनिवर्सिटी का एक स्क्रीनशॉट दिखाया है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि सिविल के सारे कोर्सेस यहाँ पे है। यहाँ पे फिलहाल 4 ही कोर्स दिख रहे हैं, लेकिन सिविल के जो भी कोर्सेस है, जो भी सॉफ्टवेयर कोर्सेस है, फिर वो ऑटोकैड हो सकता है, रेविट हो सकता है, स्टैडको हो सकता है, ईटैब, मैक्स, जो भी सॉफ्टवेयर है सिविल के, वो सारे सॉफ्टवेयर आप यूनिवर्सिटी में जाके सीख सकते हो। हर एक का अलग अलग वीडियो है, आप इन डिटेल वो सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस जॉब में और अगर आपको सॉफ्टवेयर सीखने हो, अगर आपके सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन स्किल और अदर स्किल जो है आपको वो इम्प्रूव करने हो, तो यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब करो। अगर और डिटेल्स चाहिए आपको तो मेल कर सकते हो इस दिए गए मेल ID पे, या फिर कांटेक्ट कर सकते हो इस दिए गए नंबर पे, ठीक है। और जो जॉब की जो डिस्क्रिप्शन है और जॉब के जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ, प्लस हमारा email ID भी डिस्क्रिप्शन में होगा। So yes, grab your seat and join us in CAD Center.